Good morning, students. Okay, now in today's lecture, we will see the application of Biot-Savart's law. Okay, last lecture हमने Biot-Savart's law statement और उसका मीनिंग क्लियर किया था. What is Biot-Savart's law? Due to current carrying conductor at any point, the amount of magnetic induction produced is given by this equation. dB is equal to mu 0 upon 4 pi ideal sin theta divided by r square. राइट नो जैसे हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा था, देखिए गॉस थ्योरम एंड उसके एप्लीकेशंस. तो गॉस थ्योरम इज यूजफुल टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. वैसे बायट-सावर्ट्स लॉ इज यूजफुल टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशंस फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स. ओके, नो फर्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं. मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू लॉन्ग स्टेट कंडक्टर. Now consider a long state conductor XY carrying current. Let current passes from Y to X. Let I current passes through it. Consider point P at distance R, that is perpendicular distance. NP is R. Again consider small element. This is small element. इसकी लेंथ कितनी है यहाँ पर dl. ओके, ये स्मॉल एलिमेंट है यहाँ पर. तो सेंटर ऑफ द स्मॉल एलिमेंट एट द गिवन पॉइंट P joined by the side OP, let it is denoted by S. अब इस इक्वेशन में देखिए R का मतलब क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ स्मॉल एलिमेंट टू द गिवन पॉइंट. तो हमने यहाँ पर सेंटर ऑफ स्मॉल एलिमेंट टू द गिवन पॉइंट distance S लिया है. And what is R in this case? R is perpendicular distance of given point from the current carrying state conductor. Okay. Then यहाँ पर थीटा का मतलब क्या होता है? Angle between small element and the line joining from the center of small element to the given point. देखिए small element current element dl. Okay, उसका center और given point. This is the line OP and small element. इनके बीच एंगल कितना होता है यहाँ पर? थीटा एंगल. ठीक है. Then join XP, join YP. Okay, and such that perpendicular distance NP makes angle theta 1 with YP. This is angle theta 1. Okay, and with X that angle makes NPX is equal to theta 2, NPY is equal to theta 1. That means given point P makes two angles with the extremes of state conductor. Okay, with X that NP makes angle theta 2, with Y it makes angle theta 1. Now, due to this small current carrying element, okay, at this point the amount of magnetic induction if it is dB, तो अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट्स लॉ dB के लिए मैग्नीट्यूड क्या होगा? dB इज इक्वल टू mu 0 अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा. sin थीटा कैसा हुआ यहाँ पर? आइडियल sin थीटा डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस सेंटर ऑफ स्मॉल एलिमेंट टू द गिवन पॉइंट, मतलब S स्क्वायर लिखेंगे हम यहाँ पर. ठीक है. नाउ this is the small magnetic induction produced at given point due to this small current carrying element. अब इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? देखिए अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल. देखिए स्ट्रेच्ड थंब डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? इनवर्ड होगी. सो इट इज डिनोटेड बाय क्रॉस. तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन कैसे होगी? That is perpendicular to the plane of figure and directed inward. ठीक है. Now, this long state conductor consists of small elements, n number of small elements. Okay, small element dl ऐसे x to y तक. तो P पॉइंट पर due to all small current carrying conductors की वजह से यहाँ पर टोटल जो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगा that is given by B is equal to
इंटीग्रेशन dB, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ऑल मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय ईच स्मॉल एलिमेंट एट द गिवन पॉइंट P, उसका इंटीग्रेशन लेना। अब इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी? फ्रॉम y पॉइंट टू द x पॉइंट, ये उसकी लिमिट होगी, है ना। अब y टू x मतलब P पॉइंट मेक्स एंगल θ1 with respect to perpendicular distance with y end, ओके θ1। देखिए NP परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अब NP के नीचे एंगल कितना है θ1, सो वी कंसीडर इट एज माइनस θ1, और ऊपर का जो एंगल होगा दैट इज कंसीडर एज प्लस θ2, राइट। तो यहाँ पर लिमिट ऐसे लेंगे हम माइनस θ1 टू प्लस θ2, ठीक है। तो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस θ1 टू प्लस θ2, dB की वैल्यू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय s स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। नो इन ट्रायंगल ONP, देखिए कौन सा ट्रायंगल ONP, okay, we know that this angle is theta. Now this is right angle. Let angle OPN is considered as phi. That means angle OPN is equal to phi. Let it is phi angle. Okay. Now tan phi can be written as, what is tan phi? Opposite side upon adjacent side. तो फाई एंगल की अपोजिट साइड कौन सी होगी? ON डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड NP, ओके। अब ON मतलब दैट इज द डिस्टेंस ऑफ स्मॉल एलिमेंट फ्रॉम द N पॉइंट, मतलब परपेंडिकुलर पॉइंट, ओके। NP इज परपेंडिकुलर, तो N से स्मॉल एलिमेंट का डिस्टेंस कितना है यहाँ पर? L है, मतलब ON इज L डिवाइडेड बाय NP मतलब R, ठीक है। नो L इज इक्वल टू R tan phi, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। नो डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन dl इज इक्वल टू R इंटू, अब tan phi का डेरिवेशन क्या होता है? डिफरेंशिएट अगर करते हैं tan phi को, तो इट इज sec स्क्वायर phi into d phi, ठीक है। तो यहां पर ये dl की वैल्यू हमें मिलती है, dl की वैल्यू। उसके बाद हमें s की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए वही सेम ट्रायंगल ONP में देखिए sec phi इज इक्वल टू, ओके, sec phi इज इक्वल टू, अब sec phi मतलब क्या होता है? 1 अपॉन sin phi या cos phi, 1 अपॉन cos phi, बराबर है 1 अपॉन, अब cos phi मतलब क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट साइड NP डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस OP, सो दिस इज, देखिए sec phi इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा OP डिवाइडेड बाय NP। व्हाट इज OP? यस, डिवाइडेड बाय NP, दैट इज R। Therefore S is equal to R into sec phi, ओके। देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, मतलब यहाँ पर हमने dl और S की वैल्यू यहाँ पर निकाली है, ठीक है। नाउ इन द सेम ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ONP, इसमें एंगल ONP कितना है? 90 डिग्री, ओके, मतलब थीटा और फाई इन दोनों की एडिशन कितनी होगी? 90 डिग्री होगी। देयरफॉर वी कैन राइट थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस फाई, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए नो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब देखिए यहां पर क्या करना है हमें? इक्वेशन 1 में dl बाद में s और थीटा की वैल्यू रखनी है, ओके।
तो b इज इक्वल टू म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर निकालते हैं इसको, माइनस थीटा 1 टू प्लस थीटा 2। ओके, डीएल के जगह पर क्या लिखना है हमें, आर सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, ओके, इंटू साइन थीटा, साइन, अब थीटा की जगह पर लिखना है 90 माइनस 5, ओके, डिवाइडेड बाय यस स्क्वायर, मतलब आर सेक 5 उसका स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर सेक स्क्वायर 5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर 5 सेक स्क्वायर 5 कैंसिल, ओके, सो b इज इक्वल टू म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, और यहाँ पर r बचता है, तो दैट इज आल्सो कांस्टेंट टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन माइनस थीटा 1 टू थीटा 2। नो, इन इंटीग्रेशन क्या रहता है, देखिए साइन 90 माइनस 5 मतलब क्या होगा, cos 5, तो यहाँ पर cos 5 लिखेंगे हम इनटू d 5, ये इक्वेशन मिलता है हमें, ठीक है। नो, b इज इक्वल टू म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 4 पाई r, ओके, अब cos 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज sin 5, ओके, और लिमिट माइनस थीटा 1 टू थीटा 2, सो b इज इक्वल टू म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 4 पाई r, ओके, इन ब्रैकेट, अब 5 की वैल्यू पहले थीटा 2 लिखनी है, माइनस 5 की वैल्यू माइनस थीटा 1 लिखनी है, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखिए साइन थीटा 2 माइनस साइन माइनस थीटा 1, ओके, सो b इज इक्वल टू म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 4 पाई r इन ब्रैकेट साइन थीटा 2 माइनस, ओके, अब साइन ऑफ माइनस थीटा 1 मतलब क्या होगा, माइनस साइन थीटा 1, सो इक्वेशन क्या होगा यहां पर तैयार, म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 4 पाई r इन ब्रैकेट, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, सो दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर magnetic induction at given point due to long state current carrying conductor, okay, तो ये इक्वेशन तैयार होता है, b is equal to mu 0 I upon 4 pi r in bracket sin theta 1 plus sin theta 2, this is general equation, okay, अगर स्ट्रेट कंडक्टर करंट कैरिंग करता है, ठीक है, तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, सो एट एनी गिवन पॉइंट, सपोज एट पॉइंट P, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी, उसके लिए ये जनरल इक्वेशन है। अब इसके डिफरेंट कंडीशंस हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, तो ये जनरल फार्मूला आपको याद रखना है, मतलब डिफरेंट कंडीशंस, इसके आधार पर हम फार्मूलेस डिफरेंट तैयार कर सकते हैं। नो, सपोज एक्स वाई कंडक्टर यहां पर है, एक्स वाई, ओके, एंड इट कैरीज करंट आई, सपोज P पॉइंट यहां पर है, ए पॉइंट यहां पर कंसीडर करते हैं, तो अगर हम एक्स पी वाई पी ज्वाइन कर देते हैं और P पॉइंट से एक्स के ऊपर, अगर P पॉइंट से एक्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये पॉइंट यहां पर n पॉइंट हो जाएगा, राइट। अब ये एंगल होगा थीटा 1 और ये एंगल होगा थीटा 2, तो दोनों एंगल NP परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर ही है, मतलब दोनों एंगल पॉजिटिव रहेंगे, ओके, तो जैसे यहां पर हमने थीटा 1 माइनस लिया था, ठीक है, जैसे हमने यहां पर थीटा 1 माइनस लिया था, तो इस कंडीशन में क्या होगा, थीटा 1 प्लस होगा, थीटा 2 भी प्लस होगा, तो b इज इक्वल टू म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 4 पाई r इन ब्रैकेट। अब यही फॉर्मूला कैसे होगा, देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है हमें, लोअर लिमिट इस कंडीशन में क्या होगा, प्लस थीटा 1 होगा या माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 1 होगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, तो ये फॉर्मूला यहां पर होगा, कब, जब पॉइंट P
लाइज बिलो y पॉइंट। ठीक है, ये फॉर्मूला यहां पर हमें यूज करना है। अगर P पॉइंट x के ऊपर लाई करता है यहां पर, फिर उस कंडीशन में भी हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। ओके, B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4 पाई r इन ब्रैकेट sin थीटा 2 माइनस sin थीटा 1। लेकिन अगर P पॉइंट x और y के सामने होगा तो फिर इसके लिए जनरल फॉर्मूला कौन सा होगा? फिर म्यू 0 I अपॉन 4 पाई r sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। ओके, देखिए मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4 पाई r इन ब्रैकेट sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। अब स्टेट कंडक्टर, लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के डिफरेंट कंडीशंस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस, इफ कंडक्टर इज इन्फिनिटली लॉन्ग, मतलब एक्स वाई कंडक्टर इन्फिनिटली लॉन्ग होगा, तो एक्स पॉइंट इन्फिनिटली लॉन्ग होगा, वाई पॉइंट भी इन्फिनिटली लॉन्ग होगा। तो पी पॉइंट अगर हम एक्स पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, एक्स पॉइंट इन्फिनिट डिस्टेंस पर है, तो ये ऑलमोस्ट पैरेलल लाइन होगी। वैसे अब P पॉइंट अगर Y पॉइंट भी यहाँ पर इन्फिनिट डिस्टेंस पर है, तो अगर हम P पॉइंट और Y पॉइंट ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट पैरेलल लाइन होगी। इसका मतलब थीटा 1 और थीटा 2 दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे हम थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एंड वी नो दैट sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला क्या होगा फिर? B is equal to mu 0 I divided by 4 pi r in a bracket। ओके, sin थीटा 1 मतलब sin 90 डिग्री, उसकी वैल्यू होगी 1 प्लस sin थीटा 2 अगेन sin 90 डिग्री, उसकी वैल्यू 1। सो यहाँ पर क्या होगा? B is equal to mu 0 I divided by 1 plus 1, ओके 2। तो यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 पाई r आ जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, उसके लिए ये फॉर्मूला होगा। नाउ केस सेकंड, इफ कंडक्टर इज ऑफ इनफिनिट लेंथ एंड वन ऑफ इट्स एंड इज इन फ्रंट ऑफ पॉइंट P। देखिए एक्स वाई कंडक्टर, उसका y पॉइंट मालूम है हमें, लेकिन x पॉइंट इन्फिनिटली लॉन्ग डिस्टेंस पर है। ओके, तो ये इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर है, लेकिन उसका एक एंड P पॉइंट के सामने होगा। ओके, सो दिस इज डिस्टेंस r व्हिच इज परपेंडिकुलर। तो थीटा 1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री और x एंड इन्फिनिट डिस्टेंस पर है। अगर P और x ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं हम, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट पैरेलल लाइन, मतलब थीटा 2 की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पर sin 0 डिग्री क्या होता है? 0 एंड sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखिए B इज इक्वल टू म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई r इन ब्रैकेट sin थीटा 1 मतलब sin 0 की वैल्यू 0 प्लस sin थीटा 2 sin 90 की वैल्यू 1। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें? म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई r, ये शॉर्ट फॉर्मूला हमें मिलता है। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट केसेस। नाउ केस नंबर 3 क्या है? देखिए कंडक्टर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ एंड वन एंड इज इन फ्रंट ऑफ P। देखिए x पॉइंट और y पॉइंट दोनों पता है हमें, मतलब ये फाइनाइट डिस्टेंस है, और P पॉइंट इज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ वन एंड ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थीटा 1 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर थीटा 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अगर हम x पॉइंट P पॉइंट ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पर, तो ये एंगल यहाँ पर होगा थीटा। लेट थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। वही इक्वेशन B इज इक्वल टू ओके म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई r इनटू ब्रैकेट में देखिए sin थीटा 1 की वैल्यू 0, sin 0 0 होता है, तो 0 प्लस sin थीटा 2 की वैल्यू थीटा, मतलब यहाँ पर क्या होगा? sin थीटा होगा। ये इक्वेशन होगा। ठीक है, नो अब यहाँ पर देखिए दिस इज परपेंडिकुलर r, दिस इज L,
तो ये हाइपोटेनियस एक्सपी की वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम? क्या होती है? रूट यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बराबर। एक्सपी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई पी स्क्वायर, दैट मीन्स यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। ओके, अब ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, सो वी कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड एक्स वाई जिसकी लेंथ है यल डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? रूट यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, ये एक फॉर्मूला यहाँ पर तैयार होता है, और एक फॉर्मूला क्या होगा तैयार? म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर इनटू, अब साइन थीटा की वैल्यू ये रखते हैं आप, यल डिवाइडेड बाय रूट यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला तैयार होता है in terms of distance of given point from the, that is perpendicular distance of given point from the straight conductor. Okay, and what is here? Length of the finite straight conductor. अगर न्यूमेरिकल्स में लेंथ ऑफ कंडक्टर और p पॉइंट का डिस्टेंस दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रेट कंडक्टर, फाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर, ओके, और एंगल नहीं दिया है, तब ये फॉर्मूला यूज करना है आपको, राइट स्टूडेंट? ओके, देन case number 4, conductor is of finite length and point P is in front of middle of conductor। देखिए x y कंडक्टर है यहाँ पर, ओके, और ये उसका मिडल पॉइंट है, तो P पॉइंट इसके सामने एग्जैक्टली, ओके, तो ये दोनों एंगल्स सेम हो जाएंगे, तो θ1 इज इक्वल θ2 इज इक्वल टू थीटा, ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे बिकॉज मिडल पॉइंट और ये परपेंडिकुलर, मतलब NP इज बाइसेक्टर ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर XY। ठीक है, ओके, तो NP मतलब, और यहाँ पर परपेंडिकुलर एंगल है, तो NP इज बाइसेक्टर ऑफ XY, तो ये दोनों एंगल सेम हो जाते हैं, मतलब θ1 इज इक्वल θ2 इज इक्वल टू थीटा। अब वही इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई करना है, B इज इक्वल टू म्यू जीरो I डिवाइडेड बाय 4 पाई R in a bracket sin theta plus sin theta। okay, so B is equal to mu 0 I into 2 times sin theta होगा, okay, और 2 इस 4 के साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ sin theta डिवाइडेड बाय 2 पाई R, तो ये जनरल फॉर्मूला यहाँ पर मिलता है हमें। ओके, लास्ट केस नंबर 5, point P is along length of the conductor, suppose XY स्ट्रेट कंडक्टर है कैरिंग करंट, अब सब केसेस में करंट पास होता है, ओके, विदाउट करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस नहीं होगी, तो यहाँ पर करंट है सब केसेस में, यहाँ पर भी करंट है। ठीक है, अब करंट पासिंग कंडक्टर, सपोज I करंट पासेस थ्रू इट एंड इट इज फाइनाइट लेंथ, लेकिन P पॉइंट कंडक्टर के सामने नहीं है। ठीक है, तो P पॉइंट देखिए अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, P पॉइंट अगर यहां पर कंसीडर कर देते हैं, तो θ1 इज इक्वल टू θ2 की वैल्यू क्या होगी बताइए जल्दी से, बिकॉज P पॉइंट इज नथिंग बट द अलोंग द स्ट्रेट कंडक्टर, तो ये 0 हो जाएगी। तो दोनों केस के लिए मतलब sin θ1 इज इक्वल टू sin θ2 इज इक्वल टू 0, तो फिर B के लिए इक्वेशन क्या होगा देखिए, म्यू 0 अपॉन 4 पाई R, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई R, ओके, इन ब्रैकेट 0 प्लस 0, बराबर है, देयरफॉर B इज इक्वल टू 0 प्लस 0 0 0 इनटू दिस टर्म 0, सो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी, मतलब फाइनाइट अगर स्ट्रेट कंडक्टर है और उसमें से करंट पास करते हैं, अगर पॉइंट P इज अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायर-सावर्ट्स लॉ। ओके, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ये जनरल फार्मूला आपको याद रखना है न्यूमेरिकल्स में। अगर न्यूमेरिकल्स में जैसी कंडीशन दी है, ओके, उस हिसाब से आपको फार्मूला वहां पर तैयार करके उसको कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट।